Welcome back to Simarthi Lakhmani YouTube channel. So today we are going to cover O-level biology, movement in and out of the cell. This is an actual our third topic, the third chapter of our biology book, which we are going to cover. We have almost covered our second and fourth chapter, and if there's some of the topics remaining, that will be coming soon. So in this chapter we are going to learn, for instance, like let's just take an example and then understand the topic itself. It's movement in and out of the cell. For instance, अगर हमारे पास एक cell है, the shape is circular, so let's just take it as like an animal cell. Okay, animal cell, or this animal cell is red blood cell, it's RBC. ठीक है, we all know that what is the work of RBC. RBC work is to carry oxygen, ठीक है, from cell to tissues and tissues to cells, something like that, right? So what its work is to carry oxygen, हम सबको पता है. अब when it carries oxygen, so what do you think, ये ऑक्सीजन हमारे पास हमारे सेल के अंदर जाती कैसे है, और ये ऑक्सीजन जो हमारे सेल से बाहर कैसे आती है? What do you think, like what is the entire procedure? If you know, that's wonderful, and if you don't know, we will be learning in this chapter. देखो, we have here semi permeable membrane, ठीक है, so there is a barrier, ठीक है, between the gas, between the outer environment and the inner environment in the cell itself, ठीक है. तो उसको पार करके हमें जाना पड़ता है, अगर ऑक्सीजन को जाना पड़ता है to go inside the cell. How does everything happens, ठीक है, we will learn these things. So in this chapter we will learn how things move in and out of the cell. अब these things, what these things can be? These things can be gases, these things can be molecules, these things can be ions, ठीक है. We will be covering entire things, like everything, gases like oxygens, ions like potassium ions, that we will be learning further. It's not only about animal cell, it's also about plant cell. We'll usually talk about root hair cell in this, and we will also talk about how the our plants gets water, ठीक है, and how our plants gets water and our food, how the food creates, like what is the procedure of photosynthesis. We'll also learn about that, and we will also cover how our entire, like for instance, if we have this, like this is a tree, and इसके अंदर अगर हम जाके माइन्यूट करके देखें, ओ दिस इज़ लाइक अ बिग वन, अगर इसके अंदर माइन्यूट करके देखें हम लोग, तो हमारे पास अगर एक जगह पे फूड बन रहा है, तो वो हमारे पास सर्कुलेट कैसे होता है बाकी वाले जो ट्री है या प्लांट है उसके अंदर. तो दैट वी विल बी स्टडिंग एज वेल. सो आई होप द इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच क्लियर. अब हम लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होती है जो हम लोग को आज सीखना है, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ही होती है, ऑफ कोर्स. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह. वैसे ही सेल की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ही होती है, ठीक है. वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन हम आज पढ़ने वाले हैं. अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि भाई हमारे पास नो एनर्जी इज़ यूज्ड, ठीक है, नो एनर्जी यूज्ड. वेल एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनर्जी is required, like without energy we cannot transport that particular thing. What do you mean by energy? I mean ATP, ठीक है. ATP क्या है? is the currency of energy, and it means adenosine triphosphate, ठीक है, which is the currency of energy, and this is very much required. So it's passive and it's active, ठीक है. अब passive के अंदर we have two main things. सबसे पहले we have diffusion that we will be learning today. Then we have osmosis, ठीक है, we have osmosis. There is one other that we will learn, and energy. and active के अंदर हमारे पास active transportation ही होती है, जिसके अंदर we have types which we will further I'll further explain in my other videos when we will be learning about the active transportation or active energy, ठीक है.
So right now we will cover diffusion. अब diffusion is something that is very easy. Diffusion mostly occurs in cells, ठीक है, also of course cells, and it's like diffuse होना किसी चीज़ के अंदर. So that we will be studying it right now. Okay, so let's just come towards what is diffusion. Diffusion is the net movements. What do you mean by net movements? For instance, here we have two particles. Okay, here we have this particle and here we have some particles like this. ठीक है, you just need to understand this. अब these molecules is known as net. ठीक है, अब in net की movement from higher concentration to the lower concentration is known as diffusion. What do you mean by high concentration, low concentration? सबके दिमाग में ये सवाल आता है, भाई हाई क्या चीज़ है और लो क्या चीज़ है. कंसनट्रेशन का मतलब होता है कि कितनी चीज़, मतलब वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है. इन केमिस्ट्री वाइल वी वर लर्निंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, देयर वी अंडरस्टूड कि कंसनट्रेशन होता है, एक हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इस वजह से इसकी जो कंसनट्रेशन वो हाई है और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो लो है. दैट्स समथिंग इट शुड बी क्लियर्ड. ठीक है, अब हमारे पास डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होती है ना, वहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए. लाइक इफ़ वी सी कि अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 है, 1 2 3 8. ठीक है, अब अगर कंसनट्रेशन इसे करना है तो ये हमारे पास 1 2 here we have 3 and then we have 8. Okay, just take it like this. अब इसमें से क्या हुआ है, इसमें से हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स गए और वहाँ पे जाके चल गए. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास दोनों साइड हमारे पास सेम कंसनट्रेशन हो गई. इसमें डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेशन टू अ लो कंसनट्रेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ परफ्यूम. जब आप परफ्यूम किसी रूम के अंदर छिड़कते हो, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास परफ्यूम की बॉटल के अंदर होते हैं. ऑफ कोर्स जब आप परफ्यूम को छिड़कते हो तो उसके सारे पार्टिकल्स हमारे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. एक जैसे खाने का एक अरोमा बनता है ना, वैसे हमारे पास एक फ्रेगनेंस बन जाती है ऑफ दैट परफ्यूम इन द एंटायर रूम या जिस चीज़ पे अप्लाई किया है. तो मतलब कि हमारे पास जो हमारी बॉटल थी उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स जो थे वो हाई कंसनट्रेशन के अंदर थे, कि मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स थे परफ्यूम के. पर जब वो रूम के अंदर एंटर हुई तो रूम क्या था, लो कंसनट्रेशन था, क्योंकि इसके अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स कम थे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने प्रेस किया गया, हमने जैसे ही प्रेस की परफ्यूम को, तो क्या हो रहा है, हमारे पास पार्टिकल्स हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन हो रहे हैं, जिससे हमारे पास डिफ्यूज़ हो रहा है, वो पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफ्यूज़ हो गए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट डिफ्यूजन इज. ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन इन बायोलॉजी, इट्स द सेम थिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफ्यूजन होती क्या है. डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, इज द नेट movement of ions and molecules from high concentration to low concentration. ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन फॉर डिफ्यूजन. ठीक है, अब डिफ्यूजन के भी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने चाहिए कि भाई डिफ्यूजन ऐसे ही होती है. अब डिफ्यूजन इज समथिंग जो होती है हमारे पास रैंडम मोशन की ना. रैंडम मोशन के अंदर हमारे पास डिफ्यूजन होती है. व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम मोशन, मतलब कि हमारे पास रैंडम मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो खुद ही जा रहे होते हैं. एंड मतलब कि ऐसे नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर पाथवे के अंदर सारे जाएंगे, नहीं, थोड़े ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, तो रैंडम मोशन होगी इनकी.
ठीक है, दैट इट मीन्स। उसके बाद हमारे पास होता है कि जो हमने पढ़ लिया ये पॉइंट, कि हमारे पास ये जो है does not require energy, which is a very main point, ठीक है। and diffusion is something which can occur with semi permeable membrane, और उसके अलावा भी वो अकर हो सकता है। मतलब कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेम्ब्रेन की वजह से हमारे पास पार्टिकल्स जा नहीं पाते हैं, पर डिफ्यूजन जो होती है ना उसमें पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो परमिएबल मेम्ब्रेन की वेरिएबिलिटी आ जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि ये डेड के अंदर भी हो सकता है एंड लिविंग के अंदर भी हमारे पास डिफ्यूजन हो सकती है। मतलब डेड सेल है या लिविंग सेल है, दोनों के अंदर ही हमारे पास डिफ्यूजन टेक प्लेस हो सकती है। सो या that's it for today's video. In my next video we will be covering the factors affecting diffusion एंड इसका पूरा प्रोसीजर कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, एंड देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन एज वेल. So yeah, thank you for being in there with me and just getting this kind of introduction for this chapter. I'll get back to you